Hello students, welcome to Medsi Educator. Today in this video you are going to learn a 12th standard biology chapter number 11, that is biotechnology, its principle and processes, in which there is include a normal introduction, the principle of biotechnology and genetic engineering, about the process of recombinant DNA technology and recombinant DNA tools. So, as you know students, that in your previous standard like in 8, 9, 10th or even in 11th also, आपने प्लांट एनिमल्स के बारे में बेसिक्स उसके पढ़े हैं, जो साइंस के जो भी बेसिक्स क्राइटेरिया है उसके बारे में पढ़ा है, बट यू नेवर लर्न अबाउट दिस बायोटेक्नोलॉजी. This one is completely new for you. So in this video, I'm trying to explain something basic funda of biotechnology and why there is a use of a biotechnology in a science field. What are their principles and what is their definition? So let's we start first with the definition of a biotechnology. Biotechnological definition include: biotechnology can be defined as the use of microorganisms, plants or animal cells or their component to produce a product and processes that are useful to the humans. So what is the biotechnology? It's a use of the biological organisms that may be either microorganisms, plant or animal cell, और या तो फिर उसके कंपोनेंट भी हो सकते हैं, सेल के कंपोनेंट्स भी हो सकते हैं, जैसे कि मॉलिक्यूल्स. ओके, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं. व्हाई? टू यूज दैट मॉलिक्यूल्स टू प्रोड्यूस सम प्रोडक्ट और क्रिएट सम प्रोसेसेस दैट आर यूजफुल टू द ह्यूमंस. मेकिंग ऑफ कर्ड, आप दही बनाते होगे घर पे, ओके, ब्रेड और मेकिंग वाइन, दैट ऑल इंक्लूड अ माइक्रोब्स मीडिएटेड प्रोसेस. ये सारी प्रोसेस कैसे है? माइक्रोब से मीडिएटेड है, जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डायरेक्टली यूज्ड होते हैं. सो दे आर द फॉर्म ऑफ बायोटेक्नोलॉजी. If we talk regarding a modern biotechnology, that include in vitro fertilization, that leading to a test tube baby, synthesizing a gene और their use, कोई भी जीन को बनाना है या तो फिर उसको यूज करना है, उसको डिकोड करना है, डेवलपिंग अ डीएनए वैक्सीन्स और इवन करेक्टिंग अ डिफेक्टिव जीन, जो भी जीन्स डिफेक्ट हो चुके हैं उसको करेक्ट करना, दैट ऑल आर द पार्ट ऑफ द बायोटेक्नोलॉजी. सो अगेन a basic definition of the biotechnology. What is there? It's a use of biological products like a microorganisms, plants or animals and their components to produce such a product and process. Which type of the product and process? That are used to the humans. Okay, now according to the European Federation, that give a different, same biotechnological definition but in their way. What is that? It's a integration of natural science and organisms, cell, part of their and their molecular analog, मतलब कि जो भी उसके पार्ट है या तो फिर उसके कोई भी मॉलिक्यूल्स है. Why? For their product and service. Again, what is the definition of biotechnology according to the European Federation of Biotechnology? That include integration of natural science or and organisms, their cell, their part or even their molecular analog. For what? For the product and services. This encompasses both traditional view and the modern biotechnology. Okay, so these are about the definition of the biotechnology. Nothing but that terminology. Just आप biotechnology को अगर बोलेंगे तो भी आपको समझ में आ जाएगा. Bio, it's a any living things. Okay, and technology, we use a techniques. So living things and techniques को अगर जोड़ के हम कुछ new products बनाते हैं in a
लार्जर क्वांटिटीज, ओके, जो भी न्यू प्रोडक्ट्स बना रहे फॉर बेनिफिशियल टू द ह्यूमंस, फॉर द यूज ऑफ द ह्यूमंस, दैट आर नोन एज अ बायोटेक्नोलॉजी. So this all about the definition of biotechnology. Now the principle of biotechnology, there are mainly the principle of biotechnology, they are based on the concept, two concept. First one, that is the genetic engineering. This is the most important basics that include into the biotechnology. So in genetic engineering, that define as the direct introduce of DNA and RNA. What is DNA and RNA? As you know, it's a genetic material. Deoxyribonucleic acid and ribonucleic acid. आपको पता है. Nuclear cell, in that there is a nucleus, and in that there is a presence of nucleic material like DNA and RNA. All the living organisms possess this DNA and RNA. So इंट्रोडक्शन ऑफ दिस डीएनए एंड आरएनए इनटू द होस्ट ऑर्गेनिज्म, हम उसको और एक कोई भी एक ऑर्गेनिज्म में से आइसोलेट करके उसको कोई और ऑर्गेनिज्म में इंट्रोड्यूस करवाते हैं और उसी ऑर्गेनिज्म को बोला जाता है होस्ट ऑर्गेनिज्म. एंड टू चेंज देयर फिनोटाइप, फिनोटाइप मतलब कि उसके जो कैरेक्टर्स है. एज यू नो कि जो भी न्यूक्लिक मटेरियल प्रेजेंट होता है सेल में, दैट विल बी डिकोडेड एंड अकॉर्डिंग टू दैट that organism having their particular phenotypic characters. तो हम कोई एक ऑर्गेनिज्म में से इस डीएनए और आरएनए को आइसोलेट करते हैं और उसी को कोई और ऑर्गेनिज्म में इंट्रोड्यूस करवाते हैं एंड वी चेंज देयर फिनोटाइप, उसी होस्ट ऑर्गेनिज्म के फिनोटाइप को चेंज करते हैं. तो देट आर इंक्लूडेड इनटू द जेनेटिक इंजीनियरिंग. व्हाई जेनेटिक? बिकॉज कि यहाँ पे डीएनए और आरएनए का इस्तेमाल हो रहा है, दैट्स व्हाई. Engineering means to use a techniques. Okay, वो आपको पता है. So over here in genetic engineering we have to change or engineered their DNA, their nucleic material like DNA and RNA. So this one is the basic for a biotechnological process. First technique that are basic for a biotechnological process. Now the second one include adequate maintenance of the sterility. This is also most important. To maintenance of the sterile means microbial contamination free. कोई भी और ऑर्गेनिज्म का कंटामिनेशन ना हो, कोई भी और ऑर्गेनिज्म ना हो. ओके, व्हाट इज द स्टेरिलिटी? जस्ट टू ग्रो only a desired microbes. It enables only a one type of the microbes or maybe a eukaryotic cell like a plant cell or animal cell. जो भी हमने जिसको भी हमने मॉडिफाइड किया है, सिर्फ उसी को ही हमें ग्रो करवाना है इन अ लार्ज क्वांटिटीज for the manufacturing of the product. That product may be either antibiotics, vaccines or enzymes. जिसको भी हमें प्रोड्यूस करना है, हमें प्रोड्यूस करना है फ्रॉम व्हाट? फ्रॉम अ यूकैरियोटिक सेल और अ माइक्रोब्स. और वही माइक्रोब्स सिर्फ उसी का ही ग्रोथ होना चाहिए. वी डोंट रिक्वायर एनी अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स that are included into the adequate maintenance of sterility. So these are two core techniques that give rise to a modern biotechnology. What are their techniques? That is the genetic engineering and adequate maintenance of the sterility. Now, the techniques of genetic engineering include the following. That is, first step, it's a creation of recombinant DNA. व्हाट इज द रिकॉम्बिनेंट डीएनए? मतलब कि हमारा जो नॉर्मल डीएनए है, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या तो फिर प्लांट या तो फिर सेल, प्लांट सेल या तो फिर एनिमल सेल, जिसका जो नॉर्मल डीएनए है उसको मॉडिफाइड करना है थोड़ा बहुत, दैट इज नोन एज अ रिकॉम्बिनेंट डीएनए. सो व्हाट वी हैव टू डू इन अ फर्स्ट स्टेप? टू क्रिएट a recombinant DNA by combining a desired gene. What is the desired gene means? Desired gene मतलब कि जिसकी हमें जरूरत है. जीन जो आपको कैरेक्टर देगा. ओके, तो हमें जिस कैरेक्टर की जरूरत है उसी जीन को सिर्फ हमें कंबाइन करना है. सो व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप? दैट फर्स्ट स्टेप इंक्लूड क्रिएशन ऑफ recombinant DNA by combining a desired gene.
रिकॉम्बिनेंट हो गया. देन आफ्टर अवर सेकंड स्टेप दैट इंक्लूड द जीन ट्रांसफर. जो भी हमने रिकॉम्बिनेंट किए उसको ट्रांसफर करना है इनटू द होस्ट सेल, जिस जहां पे वो मल्टीप्लाई होगा. एंड थर्ड वन, टू मेंटेन दिस रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनटू द होस्ट सेल एंड प्रोड्यूस अ जीन क्लोन्स. उसके नंबर्स बढ़ाने हैं, वो हमें ट्रांसफर करना है, जीन रिकॉम्बिनेंट जीन ट्रांसफर करना है और उसको होस्ट सेल में क्लोनिंग करना है. ओके, सो in this, as you show, this restriction this bacteria, we isolate the plasmid. That plasmid, we actually recombine this plasmid and transfer into the host cell. And from that, we produce a new product, okay, by maintaining that cell. So these three steps are included into the genetic engineering in which recombinant product will be produced. Now, let us understood about the concept development of principle of genetic engineering. Why we use this genetic engineering? उसकी क्या ज़रूरत है? क्यों हमें ये चीज़ करने की ज़रूरत है? So you probably appreciate the advantage of sexual reproduction over asexual reproduction. आपने अपने प्रीवियस स्टैंडर्ड में भी पढ़ा होगा अबाउट द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड द असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड what is the advantage of the sexual reproduction over a asexual reproduction. So as you know, asexual reproduction that preserve the genetic information. asexual reproduction में जो हमारी genetic information है वो preserve होती है. क्यों? Because in asexual reproduction there is a only one parent is there. तो जो भी रिप्रोडक्शन हो रहा है उसके थ्रू उनके जो भी जेनेटिक मटेरियल है वो एग्जैक्ट उसकी कॉपी ही प्रोड्यूस होती है. ओके, but while in case of the sexual reproduction that will permit a variation because over here two parent is there, their gamete is produced, that gamete fuse with each other and produce a new offspring. So sexual reproduction that gives the variation. Using this basic funda, we use a traditional hybridization that are used in plants and animal breeding that leads to the inclusion and multiplication of undesirable gene along with the desirable trait. इसी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जो भी बेसिक्स फंडा को हमने क्लियर करके ट्रेडिशनल वे में हमने हाइब्रिडाइजेशन की प्रोसेस की थी. तो उसमें क्या होता है कि जो भी प्लांट एंड एनिमल्स को जो हम हाइब्रिडाइज करवाते हैं उनकी जब ब्रीडिंग करवाते हैं, क्यों हमें ब्रीडिंग करवानी है? टू गेट अ डिजायर्ड कैरेक्टर्स, उसके जो भी अच्छे कैरेक्टर्स है उनको एनहांस करने के लिए. लेकिन उसमें क्या होता है कि गुड कैरेक्टर मतलब कि जो डिजायर्ड जीन है, डिजायर्ड कैरेक्टर है, उसके साथ साथ अनडिजायर्ड जीन भी इंट्रोड्यूस हो जाते हैं जिसकी हमें जरूरत नहीं है. ओके, बट इन अ टेक्निक ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग विच इंक्लूड क्रिएशन ऑफ द रिकॉम्बिनेंट डीएनए. यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? यूजिंग द जेनेटिक इंजीनियरिंग वी क्रिएट अ रिकॉम्बिनेंट डीएनए that include the gene cloning and gene transfer, and because of this that allow us to isolate and introduce only a one or a set of desired gene. इससे क्या होता है कि हम जब भी रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाते हैं तो उसमें क्या, जैसे मैंने आपको इस आगे के स्लाइड में मैंने आपको बताया था कि जो स्टेप हमने इंक्लूड किए कि उसमें हम जो डिजायर्ड कैरेक्टर्स के जो जीन होते हैं उसको आइसोलेट करते हैं कोई एक ऑर्गेनिज्म में से और उसी को ही दूसरे ऑर्गेनिज्म में इंट्रोड्यूस करवाते. तो मतलब कि हमें जिस कैरेक्टर्स की ज़रूरत है हम सिर्फ उसी कैरेक्टर्स को कैरी फॉरवर्ड करते हैं, उसी कैरेक्टर्स के रिगार्डिंग जीन को आइसोलेट करते हैं और फिर उसी को ही ट्रांसफर करते हैं. तो यहाँ पे अनडिजायर्ड जीन होने के कोई चांसेस नहीं रहते. वी जस्ट अलाउ टू इंट्रोड्यूस ओनली अ वन और अ सेट ऑफ डिजायर्ड जीन विदाउट इंट्रोड्यूसिंग undesired gene into a target organism. So that is the advantage of this recombinant DNA or a genetic engineering over a traditional hybridization process. क्योंकि वहाँ पे क्या हो रहा था, हमें जो डिजायर्ड कैरेक्टर्स है उसके साथ साथ अनडिजायरेबल कैरेक्टर्स भी आ जाते हैं जिसकी ज़रूरत नहीं है. While in case of the genetic engineering,
वी एक्चुअली ट्रांसफर ओनली अ गुड कैरेक्टर्स, जिसके कैरेक्टर्स अच्छे वही हम सिर्फ आइसोलेट करते हैं और उसी को ही ट्रांसफर करवाते हैं। तो उससे क्या होता है कि हमारे जो भी प्रोडक्ट है वो निकल के आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। हमारे जो डिजायर्ड कैरेक्टर्स के वाले जो प्रोडक्ट्स होते हैं वही हमें मिलते हैं, नेगेटिव प्रोडक्ट्स के चांसेस कम हो जाते हैं। नाउ बिफोर we go through the actual process of the recombinant, we have to learn about some terminology and what is their meaning in this recombinant DNA process, in which first we include the origin of replication. Okay, first of all, what is the replication? Replication is nothing, जो भी DNA है उसी को ही हमें replicate करना है, मतलब कि उसके ही नंबर्स बढ़ाने हैं। ओके, जो डीएनए की सीक्वेंस है सेम सीक्वेंस को हमें दो नंबर मतलब कि एक में से दो बनाने हैं, दैट इज द रेप्लिकेशन। लेकिन ये रेप्लिकेशन कहाँ से स्टार्ट होता है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड दैट आर इंक्लूडेड इनटू द ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। सो इन दिस अ स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इनिशिएटिंग अ रेप्लिकेशन, एक ऐसी जगह कि जहां से डीएनए का रेप्लिकेशन स्टार्ट हो सके, ओके, उसको बोला जाता है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। एज यू सीन इन दिस फिगर, दिस वन इज द डीएनए स्ट्रैंड एंड ओवर हियर वन पोर्शन इज देयर दैट विल अलाउ द रेप्लिकेशन ऑफ द डीएनए। अब जैसे कि यहाँ पे देख रहे हो कि रेप्लिकेशन स्टार्ट हो चुका है, एक में से दो डीएनए के स्ट्रैंड्स बन रहे हैं, ओके। Therefore, for the multiplication of any alien piece of the DNA, alien piece of the DNA मतलब कि जो हमने बाहर से इंट्रोड्यूस करवाया है into an organism, it needs to be a part of the chromosome which has a specific sequence known as the origin of replication। हमने जो भी DNA जो हमने आइसोलेट किए उसमें एक ऐसा पोर्शन होना चाहिए कि जहाँ से उसका रेप्लिकेशन स्टार्ट हो सके, तो उस सीक्वेंस को बोला जाता है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, जहां से रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है। दस एन एलियन डीएनए मतलब कि हमारा जो भी टारगेट डीएनए है वो that linked with an origin of replication and so that this alien piece of the DNA can replicate and multiply itself into the host organism. This terminology you have to remember. Second one, that is the cloning. This is most important term that are used in a recombinant DNA. So what is the cloning? Cloning is the process of making multiple identical copy of any template DNA. हमारा जो डिजायर्ड डीएनए है सेम उसी की ही हमें कॉपीज बढ़ानी है, आइडेंटिकल कॉपीज बढ़ानी है, तो उसको बोला जाता है क्लोनिंग। ओके, एज यू नो, एज यू सीन इन दिस फिगर, दिस वन इज द शिप, तो उसी के ही गैमेट्स को हमें फर्टिलाइज करवा के सेम आइडेंटिकल ऑर्गेनिज्म को, अगर हमें ऑर्गेनिजम्स या तो फिर कोई भी सेल्स उसके नंबर्स अगर हमें बढ़ाने हैं, दैट आर इंक्लूडेड इनटू द क्लोनिंग। क्लोनिंग इज नथिंग बट द सेम कॉपी ऑफ दैट डीएनए, ऑफ दैट सेल और ऑफ दैट ऑर्गेनिज्म, कोई भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन उसकी आइडेंटिकल कॉपी ही बढ़ानी है। आइडेंटिकल कॉपी कब बनेगी? जब जो भी डीएनए होगा वो एज इट इज मल्टीप्लाई होगा विदाउट एनी वेरिएशन, जैसे कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है। दैट इज अ क्लोनिंग प्रोसेस। अनदर टर्म दैट इज द प्लाज्मिड। सो दिस वन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट बिकॉज कि ये जो प्लाज्मिड है उसी के बेस पे पूरी रिकॉम्बिनेंट प्रोसेस टिकी हुई है, ऐसा भी हम लोग बोल सकते हैं, बिकॉज कि जो भी हमें वेरिएशन करना है वो प्लाज्मिड के थ्रू कर सकते हैं, और जो भी हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं जीन को, जो भी मटेरियल हम डीएनए का ट्रांसफ़र कर रहे हैं वो भी हम प्लाज्मिड के थ्रू ही करवा सकते हैं। इसीलिए प्लाज्मिड इट्स अ मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इन अ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज द प्लाज्मिड, उसको जानना भी ज़रूरी है, बिकॉज हमें आगे प्रीवियस हमारे जो भी स्टैंडर्ड्स हुए उसमें इसके बारे में ज़्यादातर कोई भी जिक्र नहीं हुआ है। सो व्हाट इज द प्लाज्मिड? फर्स्ट वी हैव टू लर्न अबाउट दैट। प्लाज्मिड इज नथिंग बट अ सर्कुलर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल दैट इज कैपेबल ऑफ ऑटोनोमस रेप्लिकेशन। ये जैसे कि आप फिगर में देख सकते हो कि एक बैक्टीरियल सेल है
बैक्टीरियल डीएनए है, उसके साथ along with that bacterial chromosome a circular chromosomal material is there that having a autosomal replication capability, जिसकी जो अपने आप रेप्लिकेट हो सकता है उसको बोला जाता है प्लाज्मिड. ओके, Stanley and Hubbard that accomplished this in 1972 by isolating a antibiotic resistance gene by cutting out a piece of DNA from a plasmid which was responsible for conferring a antibiotic resistance. ये दोनों साइंटिस्ट हैं जिन्होंने सबसे पहले प्लाज्मिड को आइसोलेट किया था. ठीक है, उन्होंने एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन को उसमें से कट किया है एंड that will be responsible for antibiotic resistance. Now, plasmids are used as a vector also for cloning and the expression. कैसे यूज होता है हम आपको नेक्स्ट जो रिकॉम्बिनेंट प्रोसेस है उसमें बताऊंगी. Foreign gene is also introduced into the plasmid and plasmid is allowed to multiply. ये एक ऐसी चीज है जिसमें से हम कुछ डीएनए के पार्ट्स को निकाल भी सकते हैं और हमारा जो भी टारगेट डीएनए है उसको इंट्रोड्यूस भी करवा सकते हैं. क्यों, ऐसा क्यों है? बिकॉज प्लाज्मिड हैविंग अ कैपेबिलिटी दैट रेप्लिकेट ऑटोनोमसली, वो अपने आप ही रेप्लिकेट करता है, उसको क्रोमोसोमल डीएनए की जरूरत नहीं है रेप्लिकेशन के लिए. यूजिंग दिस कैरेक्टर प्लाज्मिड आर यूज्ड इन अ रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस. दिस कोज द मल्टीप्लीकेशन ऑफ द डिजायर्ड जीन, जिससे हम जो भी हमारा डिजायर्ड जीन है उसको भी मल्टीप्लाई करवा सकते हैं. सो अगेन व्हाट इज द प्लाज्मिड? नथिंग बट अ एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल प्रेजेंट इनटू द बैक्टीरियल सेल that having a tendency to replicate themselves. Okay, now antibiotic resistance gene, this is also most important things in a recombinant DNA, in which the gene in certain microorganism that bestow on them the ability to grow in the presence of a specific antibiotic as the gene gives them resistance. ऐसे बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं, आपने एंटीबायोटिक के बारे में भी पढ़ा होगा कि जो बैक्टीरिया को किल करता है, लेकिन कई बार क्या होता है कि कुछ बैक्टीरिया किल नहीं होते हैं. क्यों? बिकॉज दैट बैक्टीरिया, दैट सेल दैट possess a some type of एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन, एक ऐसे जीन होते हैं जो एंटीबायोटिक को रेजिस्ट करता है, मीन्स उस एंटीबायोटिक के अगेंस्ट में भी वो ग्रो कर सकता है. दिस स्पेसिफिक कैरेक्टर्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट इन रिकॉम्बिनेंट प्रोसेस थ्रू विच वी हम जो भी हमने रिकॉम्बिनेंट किया है, जो भी प्लाज्मिड हमने रिकॉम्बिनेंट किए हैं, हम उसको आइडेंटिफाई कर सके. उसके लिए एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन की ज़रूरत पड़ती है. वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन कहाँ पे होता है? onto the in a plasmid. Okay, that plasmid contain a antibiotic resistance gene. इससे क्या होगा कि अगर हमने ये जो प्लाज्मिड हमने रिकॉम्बिनेंट किया है, रिकॉम्बिनेंट मतलब कि हमने हमारा जो भी डिजायर्ड डीएनए है उसको अंदर इंट्रोड्यूस करवाया है और उसके अंदर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन भी अगर प्रेजेंस है, तो हम इसी प्लाज्मिड कंटेनिंग सेल को उस एंटीबायोटिक कंटेनिंग प्लेट पे ग्रो करवा सकते हैं. अगर वो ग्रो हो जाते हैं, दैट विल इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड. Okay, that's why antibiotic resistance gene are most important for screening out a recombinant cell. रिकॉम्बिनेशन हुआ है कि नहीं हुआ है उसकी स्क्रीनिंग के लिए हमें एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन की जरूरत रहती है. Another term that is the restriction enzyme, that is also used. Restriction enzyme, it's a such type of the enzyme that cut the DNA at a specific fragment. जो भी डीएनए है, मैंने आपको आगे भी बताया कि हमें सिर्फ फ्रेगमेंट की ही ज़रूरत है, होल डीएनए की ज़रूरत नहीं है. जो भी हमारे डिजायर्ड कैरेक्टर्स वाला जो डीएनए हमें सिर्फ उसी की ही ज़रूरत है, तो उसके लिए हमें उसको कट करना पड़ता है. वो किस चीज़ से हो सकता है? बाय यूजिंग अ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, मीन्स such type of the enzyme that are used to cut a DNA at a specific fragment.
नेक्स्ट अबाउट द वेक्टर. वेक्टर इज नथिंग बट अ प्लाज्मिड. वेक्टर का मतलब होता है कि जो ट्रांसफर करने के लिए हेल्पफुल होता है. ओके तो यहाँ पे भी हम किस चीज का यूज कर रहे हैं, प्लाज्मिड का कर रहे हैं. सो वेक्टर दिस आर द प्लाज्मिड विच ट्रांसफर अ पीस ऑफ डीएनए दैट अटैच्ड टू इट. ये एक वेक्टर है, प्लाज्मिड है PBR 322, जहाँ पे हमारा डिजायर्ड जीन है जिसको हम रिकॉम्बिनेंट करके होस्ट ऑर्गेनिज्म में इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं. एंड नेक्स्ट वन दैट इज द ligase enzyme. Ligase is also one type of the enzyme that are used for joining of the DNA. रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का काम क्या था, वो कट कर रहा है. ठीक है, हमने वो कट करके आइसोलेट कर लिया, लेकिन हमें दूसरे ऑर्गेनिज्म के डीएनए के साथ उसको ज्वाइन भी करवाना होगा. ठीक है, प्लाज्मिड के साथ भी उसको रिकॉम्बिनेंट करना होगा. तो उसके लिए दो जो डीएनए है उसको एक दूसरे के साथ ज्वाइंट करने के लिए, लाइगेज करने के लिए लाइगेज एंजाइम यूज होता है. सो लाइगेज इट्स अ एंजाइम that are responsible for joining of the desired gene fragment with the host cell. मतलब जो भी हमारा फ्रेगमेंट है उसको होस्ट सेल के डीएनए के साथ ज्वाइन करना है. एंड इट्स अलाउ डीएनए फ्रेगमेंट टू स्टिक टुगेदर. वो डीएनए को एक दूसरे के साथ स्टिक करता है. सो द बेसिक स्टेप दैट आर इंक्लूडेड इनटू द modification of the organism that include as we talked earlier like identification of the DNA fragment. पहले हमें उसको आइडेंटिफाई करना होगा. फिर इंट्रोडक्शन ऑफ द डीएनए फ्रेगमेंट इनटू द सुटेबल होस्ट, उसको आइसोलेट करके हमें होस्ट ऑर्गेनिज्म में इंट्रोड्यूस करवाना है और उसको मेंटेन दैट फॉरेन डीएनए इनटू द होस्ट. जो भी हमने होस्ट ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफर किया है उसको वहां पे मेंटेन करवाना है. ओके स्टूडेंट्स, सो यहाँ पे हमने बायोटेक्नोलॉजी के बारे में, उसके डेफिनेशन के बारे में और जो भी बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोसेस में यूज्ड होने वाले जो भी टर्मिनोलॉजी है उसके बारे में मैंने आपको इंट्रोडक्शन दे दिया है. आई होप आपको ये समझ में आया होगा. इफ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल. थैंक यू एंड टेक केयर. बाय.